بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج نیوز کی نشریات یہاں شہید چوک کوٹلی سے ہونے جا رہی ہیں۔ آج بقرہ عید جو ہے اس کا تیسرا دن ہے، تو یہاں ہمارے ساتھ انجمن تحفظ حقوق عامہ کے مرکزی چیئرمین جناب تبارک سید صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں کے جنرل سیکرٹری شیخ عاشق رحمان صاحب بھی ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کے 3 دن انہوں نے اسی شہید چوک میں گزارے ہیں۔ یہیں پہ انہوں نے عید قربان کی جو پروگرام تھا وہ کیا ہے، یہاں ہی انہوں نے قربانی کی ہے۔ تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور تبارک سید صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں ان کے بیٹھنے کا مقصد کیا تھا، اور 3 دن سے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کا لایا عمل کیا ہے، آگے کتنے دن وہ یہاں بیٹھیں گے۔ جناب تبارک سید صاحب یہ بتائیں کہ یہاں آپ 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا جو یہ نیوز چینل راج نیوز ہے، اس کا اور آپ کی ٹیم کا دل کی امی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی عید کے دنوں میں اپنی گناہ کو مصروفیات سے قیمتی لمحات نکال کر یہاں ہمارے اس کیمپ میں قدم رنجہ فرمایا۔ آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم نے یہ کیمپ کیوں لگایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت کشمیری مسئلہ کشمیر کو 70 سال سے جو ہے نا وہ بھگتا ہے اور بھگتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسئلہ کشمیر بہت ہائی لائٹ ہو گیا تھا مجاہدین کی قربانیوں کے نتیجے میں، تو آج ہم نے دیکھا ہے 1 سال گزر گیا جب سے حکومت پاکستان عمران خان کے ہاتھوں میں آئی ہے، تب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا نام نشان تک مٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 5 اگست کو ہندوستان مودی سرکار نے جو ایک ایکسیشن مہاراجہ کا ایکسیشن تھا اس کو ختم کر کے، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ ڈکلیئر کیا تھا، اس کو 1 سال ہونے کو ہے، اور کشمیریوں نے بہت بڑی اس پہ مذمت کی تھی اور مذمتی تحریک چلائی تھی۔ تو مودی سرکار نے وہاں پہ اپنی 7 لاکھ افواج کی مدد سے لاک ڈاؤن کیا، جس کو بھی 1 سال ہونے کو ہے۔ 1 سال سے ہمارے کشمیری بھائی وہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ ڈرایا جا رہا ہے، عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیے جا رہے ہیں، بوڑھوں کو پاگل خانوں میں دھکیل دیا گیا ہے۔ قید و بند کی صحبتیں ہمارے کشمیری بھائی کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ برداشت کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے، تو ہم تو قربان یہی کر سکتے ہیں کہ عید کے دنوں میں بھی ہم یہاں رات دن 1 ہفتہ جو ہے نا وہ یہ ہم 4 سالوں سے یہ ہم کر رہے ہیں۔ ہر عید پہ، بڑی عید پہ ہم اپنا وقت، جان، مال قربان یہاں کرتے ہیں۔ ہم یہاں اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، یہاں زمین پہ ہم لیٹتے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں، جو بیس کیمپ میں ہم یہاں بسنے والے لوگ ہیں، ہم نے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو، اپنے جو کشمیری بھائی ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم نے ان کو نہ پہلے ماضی میں نہ چھوڑا تھا، نہ چھوڑیں گے، نہ مستقبل میں بھی۔ ان کی زندگی سے ہماری زندگی ہے، ان کی آزادی سے ہماری آزادی ہے، ان کی سانسیں چلیں گی، ہماری چلیں گی۔ ہم نے نہ تو کوئی چندے کھائے ہیں اور نہ چندوں کی سیاست کی ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے کھالیں اکٹھی کر رہے تھے، چندے کھا رہے تھے، جب چندے بند ہو گئے تب سے کسی بھی آزاد کشمیر کے شہر میں تحریک آزادی کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر آزاد ہوگا۔ کوئی بینر، کوئی تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عید پر سب لوگ، سب تنظیمیں اپنے اپنے دلوں میں گھس گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، یہ جعلی اور فرضی لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے پیٹ پوجا کرنے، اپنے پیٹ کی بھرتی کے لیے، اپنے رزق کی شادی کے لیے اتنے بنا کے نکلتے ہیں۔ آج شرم کا مقام ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی وہ کشمیری وہ عید نہیں کر سکیں۔ ان کی عید جو ہے نا وہ 2 عیدیں، چھوٹی عید، بڑی عید بھی جو ہے وہ ہندوستان کھا گیا ہے، ان کی کوئی عید نہیں ہے، وہ رو رہے ہیں۔ ان کی نظریں ہماری طرف میں سعید الگیلانی کا آج سے 3 مہینے پہلے ایک جو ہے نا وہ ایک میسج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نے آپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں دائر کرنا ہے۔ جب وہ اللہ سے رجوع کریں گے، جب ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بیس قسم کشمیریوں کو جو اربوں روپے ہمیں محض اس لیے ملتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے، ہم نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سامنے پیش کرنا ہے، ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے، ہم نے مقبوضہ کشمیر کو جو پورے کا پورا علاقہ مودی سرکار کے قبضے میں ہے اس کو ان کے شکنجوں سے، خونخوار شکنجوں سے، سامراج کے شکنجوں سے، سامراج کے پنجوں سے، ہم نے ظالموں کے پنجوں سے اس کے شکنجوں سے آزاد و واگزار کرا کے دنیا کے کونے پہ ایک آزاد اسلامی ریاست کا جو ہم نے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو کے رہے گا۔ لیکن اب میں یہ اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ نے
हमें ये पूछा कि तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं निकले जो मजबूर करके दबा दिए गए थे, जिनको मारा गया, जिन पर जालिमों ने, मुनाफिकों और काफिरों ने जुल्म से पहाड़ तोड़े। तुम मुसलमान थे, तुम कलमा गो थे, तुम्हारे पास इक़्तिदार था, तुम्हारे पास कबीले थे, तुम्हारे पास गाड़ियाँ थी, तुम्हारे पास बंगले थे, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस थे, तुम्हारे पास जायदाद थी। दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद भी वो कौन सी बात थी जिसने तुम्हारे ज़बानों पे, तुम्हारे हाथों पे ताले लगाए रखे? वो पाक पैगंबर का एक फरमान है कि जब तुम में कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से ताकत से रोके, नहीं तो अपनी ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं तो फिर दिल में बुरा महसूस करे। आज पहले आप दावे करते थे हम सब हाथ से रोकेंगे, हम हिंदू को मारेंगे, हम लाल किले पर परचम लहराएंगे, हम श्रीनगर को बाजार करेंगे, हम लद्दाख को ये करेंगे। हिंदुस्तान ने लद्दाख को सूबा बनाया, उसने वहाँ का जो स्टेटस था वो ख़त्म किया। लेकिन आज हमने हाथ की जो बात करनी भी छोड़ी, ज़बान की भी छोड़ी, हम दिल में भी महसूस करना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ वैसे शर्मिंदगी है और ये गैरत का मुकाम है। और मेरा ये पैगाम है कि इस आपके जो चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हम 84,471 मरबा मील के अंदर बसने वाले हम कश्मीरी भाई हैं। हमारे दिल में कोई मजहबी को मुनाफरत नहीं है, हमारे दिल में कोई बरादरी वाला मामला नहीं है। ये फीज है जो साम्राज्य ने तकसीम के अमल से गुजरने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमें इस बात का अदा करना होगा। 5 अगस्त का दिन जो यौम इस्तिसाल दिन है, उस दिन हमने ये सोचना है कि कश्मीरी कौम का जो इस्तिसाल है वो किस किस शक्ल में किया है, हमने उसकी किस तरह किस शक्ल में हमने उसकी मजम्मत करनी है, उसकी मरम्मत करनी है, उसकी मजम्मत के लिए अपने आप को तैयार करना है। एक 5 अगस्त के हवाले से यूम एहतसाल कश्मीर जो बन रहा है उसमें एक नई तजवीज़ आई है। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा है जी कि शाहराए कश्मीर को शाहराए श्रीनगर का नाम दिया जाए। तो आप इस हवाले से एज़ ए कश्मीरी होने के नाते इस चेंजिंग पे आप क्या कहेंगे? वो जो वज़ीर ख़ारजा है, बुनियादी तौर पर मैं उनके साथ ही पर्सनल फाइल से वाक़ हूँ। वो बुनियादी बहुत बड़ा नौसरबाज है जो वज़ीर ख़ारजा है। आज़ादियों के इस दौर में भी जब बाहर जाके वो ये बातें करता है कि मैं इंसानी को बहुत बड़ा हूँ, खुद उसने हज़ारों लोग मरीद रखे हुए हैं जो गुलाम बनाए हुए हैं के, और पका पकाया खाता है। ये श्रीनगर जो कश्मीर की रोड है वो जामिया नाम है कश्मीर, तो श्रीनगर का रखना मतलब कश्मीर का नाम ये असफ करना चाहते हैं। पहले इन्होंने इसको एक छोटी सी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, फिर जब कश्मीरियों ने आज़ाद कश्मीर लोगों ने मजम्मत की तो फिर राज्य कश्मीर को बहाल किया गया। अब इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, एक बात है कि ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है ना, इसका नाम श्रीनगर रख दें ताकि ये वहाँ आएँ, इसको श्रीनगर समझें और मुफ्ती को ख़िताब करके चले जाएँ। वरना 1948 से लेकर आज तक लाखों लोगों को इन्होंने मरवाया। इन्हें जिस मुल्क ये तर्जमानी करता है 1 इंच रकबा, सजाद साहब 1 इंच रकबा, ये जाती तंजीम है, ये फसादी तंजीम है, ये आरामखोर तंजीम है और ये हुकूमत पाकिस्तान के जो चोर हुक्मरान हैं 1 इंच रकबा ले सकें। ये तराने गा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अपने असल हकीकत है। ये बांड है, बांड, ये मजाज नहीं है, ये बांड है। और बांडू का काम होता है ये गाने गाना और ये शायरी करना। ये कुरान पाक में नबी को कहा है कि हमने जो है ना आपको शायर नहीं बनाया, हमने शायर नहीं तकलीफ की आपको ना, आपकी ये शान है कि आप शायर हूँ। तो मैं वमा अल्लमना हुश्शेरा वमा यंबगी लहू, हमने आपको शायरी सिखाई है। ये गाने गाना, ये बांड वाला काम पाक पैगंबर आप इस शान से बालातर हैं, आप अजीम हस्ती हैं। हमने आपको वो कुरान दिया, वो कलाम दिया है। तो ये जो कहता है कि इसको कश्मीर का नाम है, ये वो जो बेनज़ीर के दौर में जो बोर्ड उतारे गए थे, ये कश्मीर का बोर्ड उतारने जा रहे हैं। श्रीनगर की रोड है, श्रीनगर की रोड तो मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू होती है, चकोटी से शुरू होती है, वो इस्लामाबाद से नहीं शुरू होती है। इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद की रोड है और इस्लामाबाद से कुआला के मकाम कश्मीर में दाखिल होते हैं। अब आप हमारे चैनल की वसातत से वज़ीर ख़ारजा की जो बात है उसको डिनाई करते हैं कि जो ये शाहराए कश्मीर है इसको शाहराए श्रीनगर ना किया जाए। मैं आपके चैनल से ये बात बता देना चाहूँ शाह महमूद रशीद कि आप बहुत बड़े नौसरबाज हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, अवाम ठीक है, हम अवाम को सैल्यूट करते हैं। फ़ौज की भी पॉलिसी बदलती रहती है, हम उसके हवाले से अपने जो तहफ़्ज़ात हैं बताते हैं। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है ये पक्के चोर हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। ये कभी नबूवत कि जो हमारा ईमान का हिस्सा उस पर ये धाड़ डालते हैं, कभी जो है ना नाम अज़ब करते हैं। आज कल पंचतन पाक को अलैहिस्सलाम लिखने का जो काम है वो इन्हें छोड़ दिया है। अपने जो आला लोग हैं, हमारे जो दीन की पहचान है, जो शायर लाएँ पाक पैगंबर का खानियों में से है, तुम उनकी हैसियत ख़त्म करते हो।
एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तुम फौजी लिख कर दो ना, लिखो ना इसको, जो आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि तुम फौजी हो, आपका दांत तोड़ के रख देगा वो। और पाक पैगम्बर का कबीला, उनकी बेटी के वाले से बातें करते हो आप, किस तरह के आप मुसलमान हो। मैं भरपूर अल्फाज में बैसियत अपना कश्मीरी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आप नुसरबाजी करने जा रहे हो, आप किस हैसियत से यहाँ पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हो। हम आपका हिस्सा नहीं है, किसी भी तरीके से हम आपका पार्ट नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, हमारा सदर है, गो के वो जूते साफ करने वाला है, लेकिन नाम सदर है। में एक मुल्क में 2 सदर और 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं होती हैं, ना पे हो। हमारा वो हमारा है, सदर हमारा है, आपको कोई इख्तियार नहीं है का करें। और हमारा जो मसला है कश्मीर है, इसको अपनी हद से शेयर कर रहे हो कि पार्लियामेंट का यहाँ तक आपका तजुर्बा है। ये आपकी लिमिटेशन नहीं है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपका एरिया नहीं है। आप स्टॉप हो जाओ इस तरह के जो है ना उचित कंडू से, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपकी जो ये समाजी तंजीम है और बासियत समाजी तंजीम, आपके जो खिदमात हैं कोटली के शहरियों के लिए, आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए आपकी विरासत में है, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आपका अगला लाया अमल क्या है कि आप सियासत की तरफ मुँह हो रहे हैं या समाजी कामों को आप जारी रखेंगे? जी नहीं, हम सियासत नहीं करते हैं, चूँकि हमारा जो ख़ानदानी में 1808 में इस कोटली में आकर मेरे दादा के दादा ने यहाँ अज़ान दी थी। अब उस वक्त जो है ना ये बात गवाह है कि यहाँ मंदिर ही थे, यहाँ सिर्फ हिंदू थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। ये 1808 की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। जब हम यहाँ आए, नासिर खान की यहाँ सवार खान की हुकूमत थी, जो मंगरार राजपूत थे, उन्होंने हमें यहाँ बसाया। हमारा सियासत को तल्लुक़ नहीं, मेरे वालिद साहब ने 86 साल तक लोगों की खिदमत की है। ये हमारा ख़ानदानी काम है। हम आम लोग की बात करते हैं, कॉमन, जिनकी कोई बरादरी नहीं है, जिनका कोई कबीला नहीं है, जो मजलूम लोग हैं, हम उनको लिए जो है ना, मैं अकेला हूँ, मेरे वालिद भी अकेले थे। हमारा ना यहाँ को ना कुंभ है ना कबीला है, हमारी कोई बरादरी नहीं है, मेरे वालिद का कोई रिश्तेदार नहीं था, मैं भी अकेला हूँ, मेरा बेटा भी अकेला है। हम कोई सियासत नहीं करेंगे। ये सियासत वो करते हैं जिनकी बरादरियाँ होती हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास अक्ल वाले कबीले होते हैं। हमारा तो कबीला ही नहीं है, हमारे पास तो वोट ही नहीं है, हम अकेले हैं। ये शेख साहब हैं शहर से, इनका भी यही हिसाब है। तो हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। हमें कोई यहाँ ताज भी दे तो हम उसको जूते के नोक पर रखते हैं। हम फ़कीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, हुकूमत हम कर सकते ही नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है। हमने सच्ची आवाज़ करनी है, हम उसके लिए रेडी हैं। हमारा जो चैनल है ये बायक वक्त लंदन से, न्यूयॉर्क से और कुवैत से नशर होता है। तो हमारे चैनल को श्रीनगर की 50% आबादी जो है वो देख रही होती है, मकबूजा कश्मीर की 50% आबादी जो है वो देख रही होती है। तो हमारे चैनल की वसातत से आप मकबूजा कश्मीर के जो मजलूम अवाम हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उनसे ये है कि आप दुख की लंबी काली रहते हैं, जबर की हार न देना, सूरज ढल के रहेगा, लोगों को हिम्मत हार न देना। मैं उनको ये अपील करता हूँ, आपने कह दो बात की सोबत बराज की, मुसलमान के लिए दुनिया सिजुल मोमिन व जन्नतुल काफिर अल माल वल बनुन ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुल सालिहात। आप जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मुसलमान हैं और आप उनके आगे, उनके जबर में आगे बैसीत इंसान आप पर जुल्म कर रहे हैं। आप साबित कदम रहें, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जब तुम ही गालब रहोगे, अगर तुम सच्चे मोमिन हुए, अपने साबित कदम रखो, पीछे नहीं हटना है। क्यों कि कुरान में ये वाज़ह है कि वाला कद कतबना फी ज़बूर बाद ज़िक्र अन्ना लज़ा यरसु आबादी यस्लिन। ये ज़मीन सारी मेरे नेक बंदों को मैं इनको दूँगा, लेकिन आजमाइश के बाद आजमाइश पैगम्बर पर आई हैं। इब्राहीम सलाम को आग में फेंका गया, नूह सलाम को भी जुल्म किए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया, पाक पैगम्बर को मारा गया। उनके कबीले को दिन की रोशनी में डोलों की थाप पर मजमा लगा के सरेआम कत्ल करके, उनके जो है ना लाशों के मुसले बनाकर, उनको तीरों तलवारों के नेज़ों पर उनका सर को उठा कर रखे गया। ये आपका ईमान का हिस्सा है, आप साबित कर रहे हैं। हम जब तक कश्मीरी गैरतमंद कश्मीरी यहाँ मौजूद हैं, चांदें दासें पीसें, वो ख्वाह राज न्यूज़ चैनल की शक्ल में हो, सजाद जंगियाल की सूरत में हो, शेख आशिक रहमान की सूरत में हो और दोस्तों की सूरत में, हम आपके साथ हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये ईद का हफ्ता हमने कुर्बान किया है। हम 365 दिन आपके लिए आवाज़ उठाएंगे और जब तक आप जो है ना खड़े हैं, हम साथ खड़े रहें। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की उफ़क़ पर, कश्मीर के उफ़क़ पर आज़ादी का सूरज तुलू का होकर रहेगा। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ आमा की जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उठाई जा रही है। तो आपका अगला लाया अमल क्या है कि आपकी ये तंजीम जो है ये इसका दायरा कार आप मकबूजा कश्मीर तक भी बढ़ाएंगे या यहीं आज़ाद कश्मीर की हद तक ही रखेंगे? जी, हमारा दायरा कार पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कोई मुस्लिम जाता ना है, वो हमारा मेंबर है। जिसका कबीला नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो मकबूजा कश्मीर तो हमारा हिस्सा है ना। पूरी दुनिया का कोई भी बंदा हमारा मेंबर बन सकता है
وہ ہمارا ایک مظلوم ہونا چاہیے، وہ کوئی پرادی قبیلے والا پتہ نہیں ہونا چاہیے. ہم دامے دل میں سکھنے قلم کے ذریعے، آواز کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے اس کی مدد کریں گے، اس کے مسائل حل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید تبارک ایڈوکیٹ صاحب، جو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے یہاں 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں شہید چوک میں. تو مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم بہن بھائی ہیں ہمارے، ہماری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہم کھڑے رہیں گے. آپ کا یہ بیس کیمپ ہے، یہ جو آزاد کشمیر ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ ہمارا حصہ ہیں. تو میں اسی کے ساتھ اپنے ویور سے اجازت چاہوں گا. پھر کسی چوک میں، پھر کسی چوراہے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.